سے پراپرلی پھر کام سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جب ہم امیج انہینسمنٹ کرتے ہیں. جیسے ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ آپ کا جو امیج ہے اس کو پہلے ایکسپلور کرنا, ایکسپلور دا امیج فار ڈفرینٹ فیچرز تھرو ویژول انٹرپریٹیشن ایز ویل ایز ڈی این ویلیوز آف ڈفرینٹ بیڈز. اس سے پہلے ہم یہ کر چکے ہیں, اور امیج کے جو فیچرز ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, پھر پڑھتے ہیں اور پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور امیج انٹرپریٹیشن کی جو ٹیکنیکس ہیں 7-8-10 ٹیکنیکس ہیں ان سب کو پھر اپلائی کرتے ہیں, مختلف بینڈ کمبینیشن تک سب چیزیں کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم فیچرز پہچان سکیں, تاکہ ہم انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر سکیں. تو انفارمیشن ایکسٹریکشن میں ایک پھر جب ہم کوئی بھی چیز پہچانتے نہیں ہیں, جب ہم کوئی فیچر جو ہے کہ فیچر کے پہچاننے میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے تو پھر ہم امیج انہینسمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. کبھی برائٹنس بڑھانا, کبھی کنٹراسٹ بڑھانا, اور کبھی اس کو مختلف فلٹر سے گزارنا. اور آگے پھر کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم بینڈ ریشوئنگ کہتے ہیں یا ریزولوشن مرج کہتے ہیں. یہ سب جو ہے وہ امیج انہینسمنٹ میں آتی ہیں, امیج کو بہتر بنانے میں, تاکہ امیج سے ہم بہتر ایک وہ کر سکیں. اوکے, یہاں تک تو امیج انہینسمنٹ کی جب تک تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بعد ہم پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں. پریکٹیکل میں ہم ارداس کو کھولتے ہیں اور پھر ہم اس میں اپنا ڈیٹا سیٹ ایڈ کرتے ہیں. جو سب سیٹ یا جو موزیک ہم بنا چکے ہوتے ہیں اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں, تاکہ اس کو پھر مزید وہ بنایا جا سکے. اس کو ریسنٹ میں ہمارے پاس کیا تھا. اوکے, لیٹ اس سی ہم نے ریسنٹ میں کیا کیا تھا. دا بیجی کے پی کے ڈسٹرکٹ میں سب سیٹ ان باکس 2 اگر ہم دیکھیں تو اگر میں اس کو ایڈ کر دوں تو لیٹ اس سی, کیونکہ سب سیٹ چھوٹا سا ہوگا پھر ہمیں یہ اب سے سب سیٹ ہے ہمارا. اس کی کمبینیشن ظاہر ہے کہ جب ہم اس کا میٹا ڈیٹا دیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو امیج ہے یہ کتنے بینڈز کا ہے اور کتنے اس کی کیا ریزولوشن ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ 8 بینڈ کا امیج ہے, اور آگے ہمارے پاس اس کی ریزولوشن جو ہے وہ یہ میپ انفو پکسل ریزولوشن, یہ روز پکسل سائز ایکس اور 30 اور یہ بھی 30 امیج ہے. 30x30 میٹر ریزولوشن کا امیج ہے ہمارے پاس. اور اس میں کچھ آگے جا کے پھر مزید لیئر 1 کے ہسٹوگرام وغیرہ ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جو وہ ہے وہ جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ کس رینج میں پڑا ہوا ہے, کس رینج آف ڈی این ویلیوز میں پڑا ہوا ہے. اوکے, یہ آپ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لینڈ سیٹ امیج ہے ہمارے پاس سب سے وہ 8 امیج کا ہے. اب اگر ہم اس کی پراپرلی جو کلر کمپازٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم چینج کریں گے. دیکھیں 2 جو ہے بلو ہے, 3 گرین ہے, 4 جو ہے وہ ریڈ ہے. اس کمبینیشن میں ہمارے پاس اگر ریڈ بینڈ کو ریڈ گن سے ہم ڈسپلے کرتے ہیں, گرین کو گرین سے, بلو کو بلو سے, تو پھر ہمارے پاس نیچرل کلر کمپازٹ آتا ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نیچرل کلر کمپازٹ ہے. یو کین آلسو ہیو اے پین آف اٹ, ہوم اور پین کر دیں. آپ اس کو ادھر سے ادھر بھی لے جا سکتے ہیں. یہ آپ کو جو گرین نظر آ رہا ہے یہ جو ویجیٹیشن ہے, مگر یہ نیچرل کلر کمپازٹ ہے اور نیچرل کلر کمپازٹ سے زیادہ
हमें इसका वो पता नहीं चलता। एक इसको जूम टू फुल किया जाता है और इसके अलावा जूम टू 1:1 भी किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जितने जूम खुद देता है तो ट्रू टू द स्केल जूम लेता है डिफॉल्ट। अब इसको हम जूम टू फिट फ्रेम करते हैं और इसका अब जो वेजिटेशन कलर कंपोजिट है उसमें हम इसको चेंज करते हैं। हम सब जानते हैं कि 5 जो लेयर 5 होता है लैंडसेट 8 में वो नियर इंफ्रारेड होता है और इस वजह से उसको फिर हम रेड पर डालते हैं और नियर इंफ्रारेड लेयर जो है वो वेजिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर देता है और ग्रीन के लिए रेड कलर और ब्लू के लिए हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं। नाउ इट्स वेरी मच क्लियर, ये बिल्कुल रेड कलर जो है वो बिल्कुल प्रोमिनेंट होकर आ रहा है, निकल के आ रहा है। इसकी जो है वो इस वाज़ेह हो गया है कि ये, मगर फिर भी इसकी एनहेंसमेंट में अब देखते हैं कि इसकी मज़ीद एनहेंसमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ एरियाज हम नहीं समझ पाते, कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते, तो उसके लिए फिर उसकी मज़ीद वो करते हैं। अब हमारे पास मल्टी स्पेक्ट्रल में ये जस्ट रेडियोमेट्री एक इमेज एनहेंसमेंट के लिए यूज़ होता है, ये एक टैब है। अब आप देखें नीचे इसके नो स्ट्रेच, जब नो स्ट्रेच है तो इस तरह दिखाई देता है। अब आप देखें स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है कि जो डेटा सेट है, जिसकी ये डेटा सेट में डीएन जो वैल्यूज हैं, डीएन वैल्यूज ओरिजिनली जैसे हैं, ओरिजिनल इमेज में जैसे हैं, वही इमेज जो स्कैनर स्कैन करता है सैटेलाइट में, उसी तरह वो डीएन वैल्यू ले। यानी डीएन वैल्यू की जो रेंज है वो 0 to 255 है। तो इसमें जो रेंज जो स्कैन जो है जो स्कैनर स्कैन करता है उसको अपना एक डीएन वैल्यू हर एक पिक्सल को दे देता है। तो स्कैनर के जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो इस वक्त इसके ऊपर डिस्प्ले हो रही हैं। तो जैसे स्ट्रेच का मतलब ये है, अगर एक बैंड के जो डीएन वैल्यूज हैं उसकी रेंज 100 तक है, फॉर एग्जांपल अगर वो 50 से लेकर 150 तक है तो वो इसी तरह इसमें रहेंगे। या यूं समझ लें कि अगर वो 50 से लेकर 100 तक है तो उसमें रेंज 50 है और उसमें डार्कनेस ज्यादा है। या अगर उसकी ब्राइटनेस है तो वो उसमें रेंज जितना कम हो उसमें वो वैल्यूज सारे तकरीबन तकरीबन एक जैसे होते हैं। जब हम रेंज बढ़ा देते हैं यानी उसमें कंट्रास्ट पैदा करते हैं, लोअर वैल्यूज डार्कर की जानिब और हायर वैल्यूज वो व्हाइट की जानिब जाते हैं, तो उसमें फिर इसी तरह हमें स्ट्रेच नजर आता है। तो ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रेचेस हैं ये कंप्यूटर ने, सॉफ्टवेयर ने वैसे दी हुई हैं। तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रेचेस जो है आप देख सकते हैं, इमेज भी साथ साथ चेंज हो रहा है। अगर आपका काम यहाँ से चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा फिर नीचे मजीद उसमें जाया जा सकता है। ये एक्चुअली मुख्तलिफ बने बनाए पहले से स्ट्रेचेस हैं या बने बनाए पहले से फिल्टर्स हैं जो कि आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड स्टिचेस। जैसे ये इक्वल परसेंटेज है, ये लेफ्ट राइट परसेंटेज है, ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन स्टिच है, ये मिनिमम मैक्सिमम है, ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है। और ये अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में अगर आप देख लें और इसकी ओरिजिनल आप देख लें, ओरिजिनल और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में आप देख लें तो दोनों में एनहेंसमेंट में फर्क है। आप देख सकते हैं इस तरफ और इस तरफ आप देखें थोड़ी सी। अब ये तो टेम्परेरी तौर पर अगर आप मौजूदा जो आपका डेटा सेट मौजूद है उसके अंदर व्यू के अंदर, तो ये डेटा सेट आप इसके टेम्परेरी या रन टाइम इसकी इन्हेंसमेंट करते हैं ये मुख्तलिफ फिल्टर्स अप्लाई करके। और इसके अलावा एक तरतीब ये है कि उसको हम फिर परमानेंट एक इसका
एक परमानेंट इमेज बनाएंगे विद द सेम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो है वो जनरल कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है। ये अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स आएगा कंट्रास्ट का। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे, ये ब्राइटनेस है, ये कंट्रास्ट है, इसको जैसे जैसे हम इधर से चेंज करेंगे, जैसे इससे चेंज करेंगे या इस बार से चेंज करेंगे तो ये अप्लाई होता है। ऑटो अप्लाई का मतलब है कि जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो उसके ऊपर ये चेंजेस आती रहेंगी। जैसे आप देख लें, यहाँ पे आपको कुछ ब्लिंकिंग नजर आएगी, हल्की सी ब्लिंक, या इधर आप कर दें तो ये देखिए, ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया। ये ब्राइटनेस और डार्कनेस आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ से उसकी कंट्रास्ट है, आप देख सकते हैं, आप कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, कम और ज्यादा कर सकते हैं। कंट्रास्ट कम करेंगे तो इनमें जो फर्क होगा वो बहुत कम नजर आएगा, ज्यादा करेंगे तो उसमें और भी ब्राइटनेस वो आ जाएगी। ये डिपेंड करेगा आपके अपने उसके ऊपर, तजर्बे के ऊपर, कि आपका तजर्बा कितना है इसकी इन्हेंसमेंट में और किस तरतीब पर आप इसको रखना चाहते हैं। ये तो जनरल हो गया। उसके बाद दोबारा आप करें जस्ट रेडियोमेट्री और मजीद फोटोग्राफी इन्हेंसमेंट, पीस वाइज कंट्रास्ट, ब्रेकअप, ये देर आर सो मेनी अदर। जनरल कंट्रास्ट में आप जाएं, जनरल कंट्रास्ट में आपका जो ऊपर आपने देखा था उस तरफ, इसमें ये सारी चीजें, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और लीनियर मैक्सिमम मिनिमम, ये मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स हैं, ये फिर अप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको बताता भी है कि ये इमेज कैसे नजर आएगा। अगर आप अभी वो बनाना चाहते हैं उससे एक, अच्छा, अभी इस वक्त जो मैंने थोड़ा बहुत उसके साथ छेड़छाड़ किया है, तो ये सेव मांगेगा। जब भी आप इसको क्लोज करेंगे तो ये सेव जरूर मांगेगा, क्योंकि इस डेटा की हियत हमने चेंज की है थोड़ी सी, तो इस वजह से अब ये सेव मांगेगा। अगर आप इसको सेव कर दें तो जो ओरिजिनल डेटा सेट है वो ओरिजिनल डेटा सेट चेंज होकर रह जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, ओरिजिनल डेटा सेट तो मेरे पास ऐसी ही रहे, मैं इससे एक अलग इमेज बनाऊंगा, तो उसके लिए फिर आपको इसका इमेज जो है, इमेज विद फिल्टर क्रिएट करना पड़ता है। अब वो इमेज कैसे क्रिएट करेंगे, वो जो इस तरफ से था मल्टी स्पेक्ट्रल, ये रेडियो एडजस्टमेंट जो थी, ये ओरिजिनली ये रन टाइम पर था। अब आप रन टाइम पर नहीं कर रहे तो इसको यहां से कर लें रास्टर रेडियोमेट्रिक। यहाँ से आपको बाकायदा नया एक वो क्रिएट करना है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ये बता रहा है, क्रिएट एन आउटपुट वर्जन ऑफ एन इमेज which minimizes the contrast of the data by applying a non-linear contrast stretch that redistributes pixel values so that there are approximately the same number of pixels with each value within a range. रेंज जो है उस चेंज हो जाता है उससे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इसका एक अलग वो बनाएं, परमानेंटली एक अलग लेयर बन जाए हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का, तो इससे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का परमानेंटली एक इमेज बन जाएगा। जैसे अभी ये इनपुट है यही वाला सबसेट इमेज, तो इस वजह से इसने इनपुट ले लिया। आपने अभी आउटपुट देना है, आउटपुट दे दें, रिसेंट ओके कर दें, नो कर दें, क्योंकि नो जो है उसके ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास था सबसेट इनबॉक्स 2। अब सबसेट इनबॉक्स 2 के बजाय आप सबसेट हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आप कर दें, हेस्ट इक्वलाइज या इक्वल कर दें, हेस्ट एच इक्वल कर भी कर सकते हैं, सबसेट भी आप निकाल सकते हैं इससे। ओके, कोई भी नाम आप इसके लिए देखें, जब आप नाम दे देंगे फिर बाकी चीजें जो है आप उसको ऐसी ही जाने देंगे
इग्नोर जीरो वैल्यूज एंड स्टेटिस्टिक्स भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ये आप ओके कर दें, और ये हमें परमानेंटली एक हिस्टोग्राम इक्वलाइज्ड इमेज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम दो इमेजेस को कंपेयर करेंगे ओरिजिनल के, और यही वाला जो अभी हमने कंपेयर वो किया है, चेंज किया है, तो हम देखते हैं कि कहाँ कितनी इन्हेंसमेंट इसकी हुई है अगर हम दोनों की कंपैरिजन कर दें। तो ओके कर दें और इसको फिलहाल आप निकाल दें, बल्कि हो सकता है कि ये अच्छा ओके नाउ एड रिसेंट में हमारे पास इनबॉक्स 2 था एक, और एक जो है हमारे पास और यहाँ हम ऐड करते हैं, एक और व्यूवर ऐड कर दें बेशक, इसको साइड में इस व्यूवर में आप ओपन कर दें रिसेंट में जो हमने अभी क्रिएट किया हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ओके कर दें, और इसको जो है आप फिट टू फ्रेम कर दें। नाउ अगेन यू कैन हैव द जो कॉम्बिनेशन है बैंड कॉम्बिनेशन वो चेंज कर दें। ओके यू माइट सी द डिफरेंस इन दिस वन एंड दैट वन, यहाँ पे दोनों में फर्क है। कुछ ना कुछ चीजें इसकी इनहेंस हुई हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से। अगर हम इसको इसके साथ वो कर दें तो ये दोनों हम साथ साथ चलाएंगे तो आपको कुछ अंदाजा हुआ होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं इसकी, ये देखें यहाँ आपको अगर अब दिखाई देता है कुछ एनहेंसमेंट इसकी हुई है, अब आप देख सकते हैं। और नाउ ये मैंने क्या किया इसके साथ इसको लॉक कर दिया है, दो व्यूवर को लॉक करके एक किस्म का इमेज उसमें आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, या इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे ये देखें आप, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें एनहेंस नज़र आएंगी। कुछ फीचर शायद एनहेंस ना हो, मगर कुछ फीचर जो है आपको एनहेंस नज़र आएंगे। खासकर आपको जो वेजिटेशन है वो बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है, अब वो बिल्कुल क्लियर इसका वेजिटेशन वो दे रहा है। ये आप यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे भी आपको क्लियर इसमें कोई ज़्यादा मिक्सअप है, और यहाँ पे वेजिटेशन कलर बिल्कुल, ये वेजिटेशन बिल्कुल क्लियर कट सामने आ चुका है। और सो यू हैव गॉट सम एनहेंस्ड इमेज फ्रॉम दिस। इधर आप देख लें, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिक्सअप नज़र आता है, और यहाँ पे काफ़ी क्लियर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये लीनियर फीचर है, ये कोई और फीचर है, और ये जो है और फीचर है। सो with the histogram equalization you can enhance your image up to some extent। ये एक हमने एक एक्सरसाइज किया, और वो एक्सरसाइज किया था, इसको आप फिट टू फ्रेम कर दें।